almost 60 to 70% of your 11th standard physics syllabus is about motion. अलग अलग टाइप का मोशन हमारे बुक में दिया हुआ डिटेल में. फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशनल मोशन है. दिस क्लासिफिकेशन यू हैव सीन इन जूनियर क्लासेस आल्सो. ट्रांसलेशनल मोशन दिया होगा बुक में. देन देयर इज अ रोटेशनल मोशन. जैसे फैन घूम रहा है तो वो चल तो नहीं रहा है अपनी जगह पे, बट उसको but still it is in motion. So that is your another type of motion, rotational motion. This is your translational motion. Translational motion में motion along straight line है, जो हमारा third chapter in fact, motion along straight line. फिर आगे चल के next chapter में हम लोग पढ़ेंगे curvilinear motion. Motion along curved path. Motion in a plane. एक plane में motion study करेंगे, right? इसके फिर दो स्पेशल केसेस भी देखेंगे. एक तो इन जनरल देखेंगे. देयर आर टू स्पेशल केसेस इन आवर सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट वंस. प्रोजेक्टाइल मोशन. माइक म्यूट कर लो बेटा. एंड सर्कुलर मोशन, राइट. देन देयर इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन. Some of the books consider this as a part of translational and part of rotational. Some of the textbooks deal this as separate chapter. In our textbook they have given as a separate unit, simple harmonic motion. वो अलग ही चीज होती है, right? Then wave का motion we will study. Wave motion is another thing which you have to study in this chapter. It's not kind of motion; it's motion of wave. Right? So if you see your textbook, almost 60 to 70% of the syllabus is based on motion, right? So the first of them which we'll discuss is जिसका भी माइक म्यूट नहीं, प्लीज माइक म्यूट करो बेटा. किसका है? जब भी डाउट हो सिर्फ तभी माइक ऑन करो. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे बेसिक है मोशन में, इसके बिना आप आगे कुछ भी समझ नहीं पाओगे, राइट? ये समझा तो आगे सारे चैप्टर्स इजी लगते रहेंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट विद चैप्टर्स, सम स्मॉल पॉइंट्स व्हिच यू मस्ट नो. लाइक infinite everybody knows, right? So infinite is what? Very large number. Infinite is very large number. How large? We don't know. It's a large number, right? Can I say 99999? ऐसा 100 times लिखा हुआ, तो can I treat this as an infinite? No, this is not infinite, right? Infinite is very large. How large? We don't know. इससे भी बड़ा है, कितना बड़ा है वो मालूम नहीं है. तो इन्फिनाइट अगर आपको बोलता हूँ तो इन्फिनाइट क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर है. To test whether you understand what is infinite or not, if I ask you what is infinite plus infinite, or what is infinite into infinite, what is infinite minus infinite, or what is infinite upon infinite, ऐसे सब questions मैं पूछूँ आपसे. तो infinite plus infinite will be what? Anyone who knows? No one? Infinite. Okay. Infinite. क्यों? Very large number plus another very large number is a very large number. Infinite into infinite, say, will again be infinite. दो बहुत बड़े numbers को आप multiply करोगे तो वो एक बहुत बड़ा number आएगा, right? तो I know it's infinite. The question is what is infinite minus infinite? ये किसी को पता है क्या? बताओ जरा. If anyone can tell me what is infinite minus infinite? It's also infinite. This is not defined in maths. इसको बोलते हैं not defined. क्यों not defined? आप बोल रहे हो this is very large number, true. This is very large number, true. But कौन सा कितना large है ये कहाँ मालूम है? ये इससे ज्यादा large है या इससे ज्यादा large है वो नहीं मालूम, या वो दोनों equal हैं. तो ये जो बहुत बड़ा नंबर है कितना बड़ा मुझे मालूम नहीं, और ये भी बहुत बड़ा नंबर है वो भी मुझे मालूम नहीं. तो जो दो नंबर ही मुझे मालूम नहीं कितने बड़े, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो वी से इट इज नॉट डिफाइंड.
प्लस में तो मुझे मालूम है दो बहुत बड़े नंबर को ऐड करने से बहुत बड़ा नंबर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी आई नो, बट यहाँ पे आई डोंट, maybe this is negative, maybe this is positive, maybe this is zero, I cannot say anything, right? Similarly, what would be infinite divided by infinite? So this is Not again defined. not defined in maths because both the numbers are very large. How large, I don't know. Maybe this number is 1, maybe this number is greater than 1, or maybe this number is lesser than 1. So this is again not defined, right? तो कहने का मतलब इनफिनिट कभी कभी आपको मन में आएगा नहीं यार बड़ी नंबर है बट ठीक है अपने से हैंडल हो जाएगी, but infinite means it's not known how large it is. All we know is it's very large. That's it, right? So infinite is what, a very large number. Now, ये वो चीज है जो आपने जूनियर क्लासेस से सुन रखी होंगी. अब मुझे एक नई चीज सिखानी है आपको, इसका रेसिप्रोकल. ये हमारे को फिजिक्स में काम आता है. इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, ये क्या होता है? इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा. कितना छोटा पता नहीं. सो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ इनफाइनाइट, यू कैन से. कैसे वो रेसिप्रोकल ऑफ इनफाइनाइट है मैं समझाता हूं. 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 10? 0.1. ठीक है. व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 100? 100 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0.01. थोड़ा छोटा हो गया. व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1000? और छोटा होगा. छोटा हो रहा है ना. दिस इज रिड्यूसिंग. 0.1, 0.01, 0.01. 10,000 का रेसिप्रोकल इज स्टिल स्मॉलर. ऐसे करते 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 अगर मैं कहूँ एक बहुत बड़ा नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सम ऑफ Zero. सम ऑफ यू से 0, बट मैं कहूँगा 0 नहीं होगा. उसी को मैं बोलूंगा इनफाइनेटेसिमली स्मॉल. 0 तो फाइनाइट हो गया. कई जगह पे आपको ये लिखा हुआ शायद लेमन लैंग्वेज में या जहां पे बहुत प्रिसाइज बातें नहीं होती वहां बोल देता है कि इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होता है 0. इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है, राइट? कितना बड़ा आपको मालूम नहीं है तो उसका रेसिप्रोकल 0 कैसे हो जाएगा? जो नंबर ही आपको पता नहीं है उसका रेसिप्रोकल कैसे पता चल जाएगा? Getting my point? See, infinite is very large. How large? We don't know. So its reciprocal, how can we claim that its reciprocal is 0? Instead, जो statement है बड़ा अच्छा सा वो ये है कि infinite का reciprocal होता है infinitesimally small. एक बहुत छोटा नंबर होगा. जैसे infinite बहुत बड़ा नंबर है वैसे infinitesimally small is very small number. How small? वो किसी को पता नहीं. क्या मैं क्लेम कर सकता हूं कि ऐसे 100 जीरो लगा दो और फिर उसके बाद 1 लिख दो, ये चलेगा? नहीं. दिस इज अ फाइनाइट नंबर. जो काउंटेबल है तो वो तो फाइनाइट हो गया. आपने 0.000000 100 बार लिखा और 1 लिख दिया तो वो तो फाइनाइट हो गया, राइट? इनफाइनेटेसिमली स्मॉल इज वेरी स्मॉल. मैं ऐसे लिख नहीं सकता. आई कैन नॉट राइट इट एज अ फाइनाइट नंबर. जैसे इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं? वेरी लार्ज. वैसे इनफाइनेटेसिमली स्मॉल इज व्हाट? वेरी स्मॉल. कितना स्मॉल मुझे पता नहीं, राइट? तो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल फिजिक्स में मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करना है. एंड इनफैक्ट मैथ्स में एक अलग से चैप्टर है इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. अगर आप देखोगे ना मैथ्स का सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट आई बिलीव चैप्टर है लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट? लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, सॉरी. तो उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आपको मैथ सर पढ़ाएंगे. फिलहाल मैं जितनी मुझे जरूरत है वो मैं बताता हूँ. सो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल से a quantity x is very small. कितना small? Infinitesimally small. कितना small? Infinitesimally small. तो इस चीज को मैं मैथमेटिकली या फिजिक्स में कैसे एक्सप्रेस करूंगा? मैं ऐसा लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0. बहुत डरावनी चीज लगती है देख के और होती भी है. जेई के बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स में से एक होता है लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन. मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब है इसका. लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये है
x is very close to 0 but it is not 0. ठीक, x is very close to 0 but it is not 0. Instead it is tending to 0. ये 0 की तरफ जा रहा है, बहुत क्लोज. कितना क्लोज मुझे मालूम है. क्या वो 0.000000001 है? नहीं, उससे भी छोटा. कितना छोटा है मुझे मालूम है. इट्स वेरी क्लोज टू 0. ठीक, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो. मैथ्स में जब बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे आप तब शायद इसको अच्छे से फील कर पाओ, बट मुझे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट में जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ा सा फील करें आप. राइट, सो व्हेन आई से इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, तो उसका मतलब क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी. मतलब क्या? बहुत छोटा. कितना छोटा वो पता नहीं, इट्स वेरी स्मॉल. उसको मैं सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करूंगा? ऐसे दिखाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0. जहां पे भी मैंने ऐसा लिख दिया तो आप समझ जाना ये क्वांटिटी क्या हो गई. ये क्वांटिटी बहुत छोटी है. कौन सी क्वांटिटी? x. तो ये जो x है वो बहुत छोटा है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है, तो उसको मैं ऐसा लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0. आ रहा है समझ में? थोड़ा बहुत एटलीस्ट. नोबडी रिस्पोंडिंग है ना साहब? है तो सही. चलो ठीक है. सो अगर बिल्कुल नहीं समझ में आया तो आई ट्राई टू कन्विंस यू मोर. हाँ, और अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, क्योंकि ये बहुत डिटेल में तो आपको मैथ्स में ही समझ में आएगा, फिजिक्स में इतना अच्छे से नहीं समझ में आता, बिकॉज ये बहुत छोटा सा पार्ट है. मैथ्स में पूरा डिटेल्ड चैप्टर ही है इसके ऊपर. तो अगर बिल्कुल नहीं समझ में आया तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन. ओके, आई कंसीडर थोड़ा तो समझ में आ गया. सो नाउ वी अंडरस्टैंड इनफाइनाइट. जूनियर क्लासेस से हम लोग सुन चुके हैं. अब एक नया वर्ड सुन लिया हमने, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, व्हिच आई क्लेम इज रेसिप्रोकल ऑफ इनफाइनाइट. ठीक है. ओके, नाउ फिजिक्स में ये दो वर्ड भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इंस्टेंट एंड इंटरवल. आई लव दिस, इंस्टेंट एंड इंटरवल. इंस्टेंट एंड इंटरवल, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं. जूनियर क्लास में भी कभी सामना हुआ होगा इनसे, बट शायद इतना लोड नहीं दिया गया था. अब आपको अच्छे से सुनना और समझना पड़ेगा. इंस्टेंट एंड इंटरवल. इंस्टेंट क्या होता है, इंटरवल क्या होता है? तो आई विल बिगिन विद एन एग्जांपल. क्लास बिगिंस एट 4:15. ये हो गया इंस्टेंट. राइट, तो इंस्टेंट जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया इंस्टेंट का. इंस्टेंट का एग्जांपल क्या है? इंस्टेंट क्लास बिगिंस एट 4:15. तो ये वो इंस्टेंट की बात हो रही. कौन से इंस्टेंट की बात हो रही है? उस इंस्टेंट की जब क्लास शुरू होती है. राइट, सो क्लास बिगिंस एट 4:15. इंटरवल. इंटरवल का एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो क्लास इज फ्रॉम 4:15 टू 5:15. ये इंटरवल होगा. तो क्लास 4:15 से स्टार्ट होती है, 4:15 से स्टार्ट होती है. is the moment when teacher enters the class, is the point of the time where class begins. तो ये उस इंस्टेंट की बात हो गई. इंटरवल. इंटरवल क्या है? एक पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम, 4:15 से लेके 5:15 तक. so interval is different from instant. again start again. इंस्टेंट और इंटरवल में हम डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं. इंस्टेंट किसको बोलते हैं? इंस्टेंट इज द मोमेंट ऑफ टाइम. राइट, कितने बजे वो चीज स्टार्ट होती है, तो दैट इज इंस्टेंट. क्लास बिगिंस एट 4:15, तो वो किसकी बात हो गई? वो इंस्टेंट की बात हो गई. राइट, एक होता है इंटरवल. इंटरवल क्या होता है? क्लास इज फ्रॉम 4:15 टू 5:15, मतलब वो एक पीरियड हो गया. राइट, तो इंस्टेंट क्या है? मोमेंट ऑफ टाइम है. राइट, instant is moment of time and this is what period of time. ये आपका ड्यूरेशन है. और ये क्या है? वो
मोमेंट है, इस मोमेंट ये चीज हुई। हाँ? तो अब इतना क्यों जोर दे रहे हैं सर इस बात पे, इंस्टेंट और इंटरवल पे? फिजिक्स में या आपके रियल लाइफ में कई चीजें एक इंस्टेंट के लिए डिफाइन होती हैं और कई चीजें एक इंटरवल के लिए डिफाइन होती हैं। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल फिजिक्स का ही मैं ले लूं तो आपका स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर जो बाइक का है, कार का है, वो क्या दिखाता है? स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है। कौन सी स्पीड दिखाता है? हर इंस्टेंट की, हर मोमेंट की स्पीड बताता है, राइट? तो ये क्या बताता है आपका? इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट एवरी इंस्टेंट, ये है वो चीज बताता है, राइट? स्पीड एट एवरी इंस्टेंट इज व्हाट आवर स्पीडोमीटर शोज। अब सवाल ये आता है कि मैं रीवा से स्टार्ट करता हूं एंड आई ट्रेवल टू सतना in say 60 minutes या 1 hour. Let us say distance is 50 kilometer, let us assume. So what is my speed? तो जूनियर क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस था 50 किलोमीटर और ये 1 आवर, तो मेरा स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। Does this implies कि मेरी स्पीड थ्रू आउट 50 किलोमीटर पर आवर? नहीं, कभी मेरी स्पीड 60 भी गई होगी, कभी 70 भी गई होगी, कभी ब्रेक्स लगा के मैंने 0 भी किए होंगे, फिर वापस स्पीड बढ़ाई होगी तो 20 और 40 भी आई होगी। तो स्पीड मेरी अलग अलग थी, 60, 70, 0, अलग अलग इंस्टेंट पे मेरी स्पीड अलग थी। तो फिर ये 50 क्या है? 50 इस पूरे इंटरवल पे एवरेज किया हुआ है मैंने। 50 इज एवरेज ओवर इंटरवल, एवरेज ओवर एन इंटरवल, राइट? 1 घंटे का इंटरवल लिया है, उस इंटरवल में मैंने एवरेज निकाला है, उस एवरेज की वैल्यू जो आई है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। बट जो मेरा स्पीडोमीटर दिखाता है वो होता है हर इंस्टेंट का अलग। तो ये जो निकाला है ये एक इंटरवल के लिए निकाला है, और ये जो दिखा रहा था वो हर एक इंस्टेंट के लिए दिखा था। आपका एक्सीडेंट आपकी एवरेज स्पीड के ऊपर नहीं होता है, आपका एक्सीडेंट होगा उस इंस्टेंट की स्पीड के ऊपर होगा। आपने सोचा कि मेरी एवरेज स्पीड यहाँ से सतना जाने की 50 है, तो मैं तो अच्छा राइडर हूँ और 50 में मेरा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से मैं गाड़ी बीच में 120 ले जाऊं तो नहीं, तो 120 उस इंस्टेंट पे आपने जो स्पीड मेंटेन करी है उसके हिसाब से एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इंस्टेंट पे एक स्पीड अलग, हर इंस्टेंट पे स्पीड अलग हो सकती है, और एक इंटरवल पे जो हम निकालते हैं वो एवरेज होता है, वो अलग होता है, राइट? तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो मैं बड़ा जोर देके कह रहा हूं क्योंकि कई बार 9 तक तो आपको इतना लोड नहीं पड़ा, बट यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेंगे एंड कई बार आपको क्या पूछेंगे, कई बार आपको एवरेज स्पीड पूछेंगे। आप बोलोगे ये दो अलग अलग चीजों से सरदर्द हो गया, मेरा समझ में नहीं आ रहा कब कौन सी चीज निकालनी। तो एवरेज स्पीड मतलब एक टाइम इंटरवल होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक के बीच में आपकी स्पीड एवरेज इतनी थी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो एक इंस्टेंट पे होगी। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, ऐसे हर चीज अलग होती है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी देखेंगे हम लोग, एवरेज एक्सेलरेशन भी देखेंगे, राइट? तो कुछ चीजें इंस्टेंट के लिए डिफाइन होती हैं, कुछ एवरेज इंटरवल के लिए डिफाइन होती हैं, कुछ दोनों के लिए डिफाइन होती है। तो ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे रुकूंगा नहीं मैं, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। जब आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो टाइम को लेके बहुत सारे सिंबल्स आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी में, एनी अदर बुक। कभी वहां स्मॉल टी लिखा होगा, कभी T2 - T1 लिखा होगा, कहीं डेल्टा टी लिखा होगा, कहीं डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखा होगा। इतने सारे सिंबल्स आपको बुक्स में देखने मिलेंगे। तो कौन सा सिंबल का क्या मतलब है, विच ऑफ देम इज इंस्टेंट एंड विच ऑफ देम इज इंटरवल? तो वैसे तो डिफर कर सकता है अलग बुक्स में, बट फिर भी ये जो स्मॉल टी है यूजुअली इज फॉर इंस्टेंट, यूजुअली इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द इंस्टेंट। जो स्मॉल टी है वो घड़ी का टाइम लिखा होगा आपका 12:15 बजे, 12:10 पे, 12:40,
0140 0115 ऐसा लिखा हुआ। तो ये टाइम जो है वो स्मॉल टी जो है यूजुअली हमारे बुक्स में इंस्टेंट के लिए लिखा होता है, राइट, हर इंस्टेंट पे। अच्छा, अब मैंने आपको घड़ी के बारे में बोल दिया तो आप ये मत समझना कि वहां पे t=0 नहीं लिखा होगा। इंस्टेंट में फिर से दिखाता हूँ, मैक और बुक्स में जो लिखा होता है, मैं ऐसा लिखूंगा t=0। क्या मतलब हुआ उसका t=0? मतलब 0 सेकेंड का टाइम इंटरवल नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं मैंने घड़ी स्टार्ट की, किसी का मोशन स्टडी करना स्टार्ट किया, तो उस इंस्टेंट को मैंने t=0 से डिनोट किया। मैं अगर स्मॉल t=5 सेकेंड लिखता हूं, इसका मतलब 5 सेकेंड का इंटरवल नहीं है, इसका मतलब है घड़ी देखी 0 1 2 3 4 5, 5th सेकेंड, 5 सेकेंड जब खत्म हुए मेरे तब की बात मैं कर रहा। तो ये भी इंस्टेंट है। अगर मैंने t=15 सेकेंड लिखा है, उसका मतलब ये नहीं है कि 15 सेकेंड के इंटरवल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि घड़ी में मैंने टाइम देखना शुरू किया 1 2 3 4 5 15। अच्छा, वो पार्टिकल यहाँ, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो स्मॉल टी है यूजुअली टेक्स्ट बुक्स में इंस्टेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो t2 माइनस t1 क्या हो गया? जैसे स्मॉल टी क्या होता है, एक इंस्टेंट होता है घड़ी के हिसाब से, मान लो ये 12:15 और ये 12:30 है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि 12:30 माइनस 12:15 ऐसा सब्ट्रैक्ट करने की समझो कोशिश कर रहा हूँ, या ये बता रहा हूँ इसके बीच का टाइम। तो इसके बीच का टाइम ये क्या हो गया फिर? अब ये बन गया इंटरवल। तो जो t2 माइनस t1 है, द सिंबल t2 माइनस t1, this symbol is used for expressing an interval। एक इंटरवल को एक्सप्रेस करने के लिए ये हम यूज करते हैं क्या? t2 माइनस t1, मतलब इससे इस टाइम के बीच की बात हो रही है। t1 टाइम था कुछ, t2 टाइम था कुछ, वहां से वहां के बीच की बात हो रही है। मे बी 12:30 से 12:15 है, तो ये 15 मिनट की बात हो रही है। कौन से 15 मिनट? 12:15 से लेके 12:30 के बीच वाले 15 मिनट की बात हो रही है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर बहुत भर भर के, तो आपकी लड़ाई चैप्टर से हो, इन सिंबल से ना हो, इसलिए पहले ही चीजें बता रहा। कोई तो रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ में? एक ने भी बोल दिया तो मुझे अच्छा लगेगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो बोलो। सो इंटरवल और इंस्टेंट दो अलग अलग चीजें हैं। सिलेबस में, बुक्स में अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे आपको। स्मॉल टी लिखा हो तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, इंस्टेंट की बात हो रही है। t2 माइनस t1 लिखा होगा तो समझ जाना आप इंटरवल की बात हो रही है। अब ये नया सिंबल आया सर पे, ये क्या है? डेल्टा टी। तो डेल्टा आपको 12th में बड़ी फ्रीक्वेंटली मिलेगा। डेल्टा का मतलब मैं कह दूं क्या होता है? डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। ये डेल्टा आप किसी के सामने भी लगा सकते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के सामने आप डेल्टा लगा दो। नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बोल दो, जैसे डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा, सपोज एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा एक्स इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सपोज एम स्टैंड्स फॉर मास, तो डेल्टा लगा दिया उसके सामने, तो क्या हो जाएगा वो? चेंज इन मास। तो 11th की टेक्स्ट बुक में, 12th की टेक्स्ट बुक्स में डेल्टा सिंबल कहीं भी मिल जाए तो उसके सामने जो लिखा हो तो समझ जाना उसमें चेंज की बात हो रही है। तो डेल्टा टी लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द स्मॉल टी? दिस टी स्टैंड्स फॉर इंस्टेंट। तो चेंज इन इंस्टेंट, चेंज इन इंस्टेंट क्या हो गया? वापस से इंटरवल हो गया। जैसे चेंज इन इंस्टेंट 12:15 से 12:30, तो वो इंस्टेंट जो है, वो टाइम जो है वो चेंज, तो वो जो टाइम का जो चेंज है वही आपका इंटरवल है। इनफैक्ट सही बोलूं तो डेल्टा टी ही आपका t2 माइनस t1 कहलाता है। कभी कभी t1 और t2 दो टाइम दे देते हैं, t1 हो गया 12:15, t2 हो गया 12:30, और फिर लिख देते हैं t2 माइनस t1। कभी कभी क्या कर देते हैं वो लोग, सीधा डेल्टा टी लिख देते हैं, आप समझ जाओ वो t2 माइनस t1 की बात हो। आ रहा है समझ में? सो डेल्टा टी इज अगेन इंटरवल। जब भी डेल्टा टी लिखा मिल जाए ना,
तो आप समझ जाना कि वो भी इंटरवल है। सो इंटरवल के लिए ही ये सिंबल यूज होता है, कौन सा, डेल्टा टी। सो डेल्टा टी इज वंस अगेन यूज्ड फॉर एन इंटरवल। ओके, अब मजे की चीज आ गई, आखिरी वाली जो सरदर्द बनती है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये क्या लिखा हुआ, डेल्टा टी टेंड्स टू 0? जिसने ये सोच लिया उसको एकदम समझ में आ गया क्या लिखा हुआ। देखते हैं, कोई ट्राई करो तो क्या लिखा हुआ, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। T2 माइनस T1 होगा जो वो 0 से बहुत क्लोज होगा। तुम भी बहुत क्लोज हो इस चीज के, जो सही आंसर है, और थोड़ा सा क्लियर करो। यू आर वेरी क्लोज टू करेक्ट आंसर। T2 माइनस T1 जो आप बोल रहे हो वो 0 के बहुत क्लोज है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इंस्टेंट की बात हो रही है, इंटरवल की बात हो रही है? इंस्टेंट। इंस्टेंट की बात हो रही है। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। बहुत अच्छा, आपने अगर समझ लिया तो इंस्टेंट क्या होता है। मैंने आपसे बोला क्लास शुरू होगी 12 इंटरवल बजे। 0 यानी इंस्टेंट। टाइम इंटरवल का साइज ही आपने छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि आप तो उसने की बात कर रहे हो। कैसे डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ मैं। 12 बजे से शुरू करके आपने 12:10 तक क्लास ली, ये क्या हो गया, 12 से 12:10, ये क्या हो गया, इंटरवल हो गया। कितने मिनट का, 10 मिनट का। 12 बजे से 12:01, ये क्या है, ये इंटरवल है या इंस्टेंट है? ये भी इंटरवल है। कितना बड़ा इंटरवल है, 1 सेकेंड का। 12 बजे से शुरू करेंगे, 12 बज के कितना जीरो लगा दो, एक कम कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये भी इंटरवल है। ये 10⁻⁻⁻, 1 माइक्रो सेकेंड का इंटरवल है। ये 1 सेकेंड का था, ये 10 मिनट्स का था। ये भी इंटरवल है। देखते हैं ना, 12 बजे से शुरू करके 12 बज के 0.000001 सेकेंड, मतलब 1 माइक्रो सेकेंड का इंटरवल है, बट है तो इंटरवल ही ना। अब इसको मैं और छोटा कर दूं, यहाँ 6 जीरो लगाए थे, 5 जीरो मैं 11 जीरो लगा दूं, समझो, तो ये भी इंटरवल है। ये एक पिको सेकेंड हो गया, है तो अल्टीमेटली ये भी इंटरवल। इसी इंटरवल को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि नियरली 0 हो जाए। अभी जब इंटरवल नियरली 0 हो जाएगा तो फिर तो यार आपने बात ही नहीं करी ना, आप तो 12 बजे से लेके 12 बजे की बात कर रहे हो। तो मतलब आप तो बराबर 12 बजे की बात कर रहे हो, तो मतलब आपने इंस्टेंट की बात कर दी। तो अगर वो टाइम इंटरवल आपका 0 कर दिया तो आप इंस्टेंट बना दिया आपने उसको। अगर पीरियड बहुत छोटा हो जाए कि टीचर के एंटर करते ही खत्म हो जाए, तो फिर तो वो इंस्टेंट की बात हो गई। Am I clear? अच्छा, जिसको नहीं समझा वो रिस्पॉन्ड करो इस बार। I'll try to explain again। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सिंबल बार बार मिलेगा। ओके, सी इंटरवल, जैसे डेल्टा टी किसके लिए था, इंटरवल के लिए। इंटरवल होता है एक फाइनाइट पीरियड। फाइनाइट पीरियड मतलब क्या, जिसको आप काउंट कर सकते। ये दो वर्ड मैंने इसीलिए पहले बताया आपको, एक फाइनाइट वर्ड बताया और एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल बताया, ये बताया, और एक इनफाइनाइट बताया। ये दोनों काउंटेबल नहीं होते। कौन से, ये काउंटेबल नहीं होता, ये काउंटेबल नहीं होता। दिस इज काउंटेबल। फाइनाइट, आप 10 सेकेंड बोल दो, फाइनाइट है। आप 1.15 सेकेंड बोल दो, फाइनाइट है। 0.0001 सेकेंड बोल दो, वो भी फाइनाइट है। जो आप गिन सकते हो वो फाइनाइट है। ये वो है जो बहुत बड़ा है, ये वो है जो बहुत छोटा है। ना ये गिना जा सकता है, ना ये गिना जा सकता है। ये दोनों अलग ही चीज है। तो अब आते हैं हम लोग एक एक्सप्लेनेशन पे। मुझे किसी का मोशन डिस्क्राइब करना था, ठीक 12 बजे मुझे उसकी स्पीड चेक करनी थी। तो मैंने क्या सोचा यार कि स्पीड चेक करने के लिए मुझे तो टाइम इंटरवल लगेगा। मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे एक टाइम इंटरवल लगेगा और मुझे उसमें डिस्टेंस ट्रेवल लगेगा। आर यू कन्विंस्ड इस चीज से? मुझे अगर किसी व्हीकल की, किसी ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की स्पीड निकालनी है कितने बजे, ठीक 12 बजे। या समझो मैं एक ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ट्रेन में बैठे बैठे किसी ने मुझसे पूछा कि बॉस, बीइंग अ टीचर ऑफ फिजिक्स, कैन यू
measure the speed of the train exactly at 12 o'clock. तो मैंने तो बचपन से सीखा था कि मुझे डिस्टेंस चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, टाइम इंटरवल चाहिए होता है, बराबर है, यही सीखा था ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, टाइम इंटरवल चाहिए होता है, बराबर ना। स्पीड मेजर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम इंटरवल। उनने मुझे बोला नहीं नहीं मुझे तो एग्जैक्ट 12 बजेगी। मैं बोला यार मेरे को 10 सेकंड दो। तो 10 सेकंड में मैं क्या करूंगा, फटाफट देखूंगा कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन टाइम इंटरवल। मैं बोलूंगा ये स्पीड है, वो बोलेगा ना ना ये तो एवरेज कर दिया आपने, मुझे ठीक 12 बजे की बताओ। तो मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा 12 बजे की स्पीड कैसे निकलती। तो मैंने उसको बोला 12:01 तो दो मुझे। तो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लूंगा मैं और उसमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालूंगा और डिवाइड करके बता दूंगा। उसने बोला ना ना ये तो आपने 1 सेकंड का एवरेज बता दिया, मुझे तो आप ठीक 12 बजे का बताओ। अब मैं फिर टेंशन में 12 बजे की बात कैसे निकालूं, मेरे को तो डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तब उसने, सामने वाले ने, जो मेरे उसको मुझसे ज्यादा चीजें आती थी, उसने बताया कि आप जो ये इंटरवल ले रहे हो ये थोड़े बड़े बड़े इंटरवल ले रहे हो, आप इतना छोटा इंटरवल ले, इतना छोटा इंटरवल ले कि वो इनफिनिटेसिमली स्मॉल हो जाए। तो मतलब फिर तो वो 12 बजे ही हो गए, 12 बज के थोड़ा सा, कितना थोड़ा, इतना थोड़ा ज्यादा कि वो 12 बजे ही है। तो वो जो उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो मेजर करो और वो जो टाइम इंटरवल वो डिवाइड करो, तो आपको जो चीज मिलेगी वो ठीक 12 बजे की मिलेगी। तो कहने का मतलब आप किसी भी इंस्टेंट एक टाइम इंटरवल फ्रेम करो। क्या फ्रेम करो, एक टाइम इंटरवल फ्रेम करो और उसका साइज जो है, उसका साइज आप इनफिनिटेसिमली स्मॉल कर दो, नियरली टेंडिंग टू जीरो, मतलब टेंडिंग टू जीरो कर दो, नियरली जीरो कर दो। तो आप एवरेज की बात नहीं कर रहे हो, आप उस इंस्टेंट की बात कर रहे हो। क्या मैं क्लियर हूं या अभी भी किसी को नहीं समझा? आ गया, समझ सर। ओके तो ओके तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इंस्टेंट और इंटरवल। एंड ट्रस्ट मी ये थोड़ा डिफिकल्ट चीजें हैं। अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे लिमिट्स किसी को समझ में आएगा तो बोलेगा वही एक चैप्टर है मैथ्स में जो कभी नहीं समझ में आया, और ये वो लिमिट्स ही है, टेंडिंग टू जीरो। इसको मैं जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है उसमें फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा, बट अभी टाइम कम है, आज थोड़ा हम लोग फिजिक्स बढ़ाएंगे आगे। तो ये है डिफिकल्ट चीज, कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, एवरेज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको समझ में आता है, सर आएंगे पढ़ाएंगे, बाहर 4:15 से 5:15 वो एक इंटरवल है, मुझे समझता है। बट इंस्टेंट जल्दी जल्दी नहीं समझता किसी को। तो फिर भी ये 4 सिंबल्स आप याद रखो फिलहाल के लिए। आप जैसे एनसीईआरटी बुक खोलोगे, आप रीड करना स्टार्ट करोगे, आपका चैप्टर 3rd चैप्टर है बेसिकली, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो आपको ये सारे सिंबल्स आंख के सामने घूमते हुए नजर आएंगे। कभी स्मॉल टी लिखा होगा, स्मॉल टी इज फॉर इंस्टेंट, वो घड़ी का टाइम होगा, 12 बजे, 12:10, 12:50, 4:08, 4:10, 9:50, वो अलग अलग टाइम है। ये इंटरवल होगा इतने बजे से इतने बजे तक, दिस इज योर इंटरवल। डेल्टा टी एंड T2 - T1 आर सेम थिंग। इनफैक्ट डेल्टा एक नया सिंबल है आपके लिए, आप इसको किसी के सामने भी लगा सकते हो, आप डेल्टा M लिख सकते हो, M स्टैंड्स फॉर मास, तो डेल्टा M क्या हो जाएगा, चेंज इन मास। अगर x आपकी पोजीशन है तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन हो जाएगा। अगर आपका F फोर्स है तो डेल्टा F क्या हो जाएगा, चेंज इन फोर्स हो जाएगा। कोई भी क्वांटिटी के आगे आप डेल्टा लगा सकते हो, उसका मतलब चेंज होता है। हाँ, किसी ने डाउट पूछा था? आप डेल्टा टी लगा दिया तो वो चेंज इन टाइम हो गया, मतलब टाइम इंटरवल हो गया, तो T2 - T1 इज टाइम इंटरवल। फिर वही टाइम इंटरवल को आप इनफिनिटेसिमली स्मॉल कर दो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दो, तो ये जो हो गया वो इनफिनिटेसिमली स्मॉल हो गया, तो ये फिर से इंस्टेंट हो गया। तो ये इंस्टेंट है, ये इंटरवल है, ये वापस से इंटरवल है, सेम ही मतलब है दोनों का, और ये वापस से इंस्टेंट हो गया। ओके, so now we know what is instantaneous quantity and what is instant and what is interval.